All right, so we'll start with next question, question number 9. An electron of energy 1800 eV describes a circular path in magnetic field of flux density zero point 0.4 Tesla. The radius of path is. So you should remember, यहाँ पे अगर R का एक क्वेश्चन चाहिए तो हमने पहले भी डिराइव किया था, आपको पता है centripetal force will be provided by force due to magnetic field. So mv square by r will be equal to qvb. कैंसल, तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा which is qbr by m. ओके, तो अल्टीमेटली हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है रेडियस, तो r चाहिए. ओके, नाउ वी डू नॉट हैव velocity, so but we have what we have is energy. तो पहले तो मैं यहाँ से r का इक्वेशन बना लेता हूँ, mv by qb. q is charge and we are talking about electron, तो e हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, v का प्रॉब्लम है. तो यू नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2e by m. So we will be under root of 2e by m. From equation number 1 and 2, we have r is equal to m by qb under root of 2e by m. E 1800 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. विल डू दैट. तो r इक्वल टू m is 9.1 into 10 power minus 31 upon q is charge and electron 1.6 into 10 power minus 19, and this is 0.4, right, multiplied by under root of 2e. 2 into e is 1800, ev to joule multiply by 1.6 into 10 power minus 19 जूल बनाने के लिए अपॉन अगेन m. तो हम कर सकते थे, इस m को अंदर लेके जा सकते थे, तो दैट इज इजी थिंग टू डू. इसको अगर मैं अंदर ले गया तो m स्क्वायर करके ले जाऊंगा, और फिर उस केस में ये और ये कैंसल होगा, मतलब आई डोंट नीड टू राइट दिस हियर देन. So I don't want to write this here. I'll just put down mass over here. अब कैलकुलेशन सिंपल कैसे करते हैं, दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वन मास मल्टीप्लाई होगा. यस, mass will be multiplied. Okay, all right. So multiply it by 9.1 into 10 power minus 31. Now ये 1.6 का पॉइंट हटा देंगे, 1/16. ये आ गया आपका 4 10 raised to minus 20, और 0.4 का 10 पावर माइनस 1 हटा दिया तो 10 पावर माइनस 21. तो 10 पावर माइनस 21 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 21 होगा. Isn't it? यहाँ तक ठीक है. I am doing intentionally such things because then it's easy for us to do calculations, right? So here you have more or less, पहले समझ लो कैलकुलेशंस को. 2 into 9 is 18 into 1800 का 18, 10 पावर 2 होगा जो होगा. 1.6 मतलब 16, इसका एक पॉइंट हटा दिया तो 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 और ये 10 पावर 19 माइनस 20, माइनस 20 और ये माइनस 31 माइनस 51, माइनस 51 और ये प्लस 2 0 माइनस 49, minus 49, right? Why I am doing this is because 18 into 18, 18 square will come outside. 16 मतलब 4 upon 16 into 4, cancel cancel. 10 पावर 21 और 10 पावर माइनस 41 में से 10 पावर माइनस 48 उसका स्क्वायर रूट ले लिया तो 10 पावर माइनस 24.
सिर्फ अंदर बच जाएगा 1/√10, क्योंकि 10⁻1 बचा था। ओके, तो सो यू हैव this is 9/8 and this is 10⁻³ so 9/8 into 10⁻³ upon √10. √10 is roughly pi, roughly pi वैल्यू होती है, तो roughly 1 जा and 3 जा, रफ बता रहा हूँ। 3/8, 1/8 is 0.125, 0.125, 0.125 into 3 है ना, मतलब the answer roughly is going to be, यहाँ पे एक इश्यू सिर्फ इतना है that 2.58 और 3.58 they are nearby, तो डेफिनेटली 10⁻³ तो आने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकते। दिस इज फॉर श्योर, है ना। इज इट फॉर श्योर, विल सी, तो हमको देखना पड़ेगा वो मोर और लेस। तो यहाँ पे यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन बट टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशंस बिकॉज आंसर्स आर नियर बाय। तो after doing exact calculations you will end up with 3.58 into 10⁻⁻4 मीटर, if I am not wrong। मैंने कैलकुलेशन करके रखा है तो मेरा तो ये आया है कम से कम, राइट। सो the only thing was that you need to make equation for r, calculations करने पड़ेंगे because of the options, they are very nearby so you cannot afford to do rough calculations। okay, next question। Two particles have the ratio of the velocities as 3:2 on entering the field. If they move in different circular paths, then the ratio of the radii will be. So two particles, their velocities v1 by v2 is 3/2, and if they're moving in different circular paths, तो अभी हमने देखा, just now we saw r turned out to be mv by qb, है ना, ये यहाँ पे हमने देखा था mv by qb, right। if they move in different circular paths, then the ratio of the radii, first of all, mass is constant, q is constant, magnetic field is constant। वैसे उन्होंने मेंशन करना चाहिए था टू पार्टिकल्स, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स बोलना चाहिए था, नहीं बोला है, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो मास और चार्ज हम रैंडमली अज्यूम नहीं कर सकते। So we say that r is proportional to v. So if r is proportional to v, then it is quite obvious. So r1 by r2 will be v1 by v2, which is 3/2. Khatam. Option number B. An electron is moving in cyclotron at a speed of 3.2 to 10⁻7 meter per second in a magnetic field of 5 to 10⁻⁻4 Tesla perpendicular to it. What is the frequency of this electron? तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फ्रीक्वेंसी हम लोग टाइम पीरियड से निकाल सकते हैं, और टाइम पीरियड आपको पता है कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये सब करने के बाद एक फॉर्मूला बनता है, और ये हमने थियरी में देखा है इनफैक्ट, QB अपॉन 2πm, दिस इज फ्रीक्वेंसी। अगर नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हो, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। टाइम पीरियड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 2πr अपॉन वेलोसिटी इज v, और v हमने अभी देखा था कैसे फाइंड होता है। तो यूजिंग ऑल दिस, मैं वापस बता रहा हूँ, v में यहाँ पे e है, राइट, ओके। तो e डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, हमको पता है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। So you should find this formula by yourself, because it is quite simple thing, it is extremely simple thing to do this,
तो वो आप करोगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू बी कितना दिया है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन 2 पाई एम, m is again 9.1 into 10 power minus 31. Now ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कैलकुलेशंस करना ही नहीं है। क्यों नहीं करने? 1.4 इज एवरीवेयर, तो सिर्फ 10 का पावर कैलकुलेट करना है। वो कैसे करते हैं? 1.6 इंटू 5 8, 16 5 का 80, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया। नीचे ये 2 है, 2 पाई है ना, 8 बाय 2 इज 4। ओके, तो ये आ गया आपके पास 4 अपॉन 9 पाई, रफली 10 पावर माइनस 19 माइनस 4 माइनस 23, ये ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 8 10 पावर 8 4 बाय 9 पाई 3.14 इंटू 9, रफली 30 हो गया नीचे, रफली 30 है नीचे। 9 इंटू 9.1 इंटू 3.14, 31 इंटू 19, रफली 30 है नीचे। तो 4 बाय 30 रफ इंटू 10 पावर 8, तो दिस इज सिंपल। 2 by 15, what is 2 by 15? 2 by 15 रफली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करना था वहां पर। 2 by 15 is 2 by 16, 2 by 16 is 1 by 8, 1 by 8 is 0.125, मतलब मुझे तो पता ही है 1.4 आने वाला है। मैं सिर्फ डेसिमल पूछ रहा था आपसे, मतलब इट इज 0.14। हमको तो पता ही है वो कि वो 1.4 ही आने वाला है। कैलकुलेशंस क्यों करना है? सिर्फ डेसिमल कहाँ लगेगा वो देखना है। तो 1.4 इंटू 10 पावर प्लस 7, राइट, प्लस 7 की प्लस 9, अच्छे से सोच लो एक बार फिर बताओ। 1.1 डेसिमल शिफ्ट किया तो 7 आया, श्योर, गुड। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, तो यू विल राइट डाउन 10 पावर 9, डू नॉट डू दैट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, अब ये भी देखा हमने, QB upon 2 pi m। Okay, good. Next question. A proton and an alpha particle enter a uniform magnetic field perpendicularly with same speed, V is constant. The ratio of time periods is, अभी 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 हमने देखा, what we just saw was frequency का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, तुमको पता है ये। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब बेसिकली बी कांस्टेंट है, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू, राइट। तो टी प्रोटॉन अपॉन टी अल्फा इज एम प्रोटॉन अपॉन एम अल्फा, क्यू अल्फा अपॉन क्यू प्रोटॉन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं कुछ नहीं करूंगा, वैसे ही रखता हूँ मैं इसको। अल्फा पार्टिकल हैज 2 protons, right? 2mp, which is wrong, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन के साथ 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं। हाँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रफली सेम होता है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मिलेंगे, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है 2mp प्लस 2mn। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल is 2e, that of proton is just e। फिर आप बोलोगे since mass of proton is approximately mass of neutron, तो Tp by T alpha will be mp upon 4mp
और ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो गया इंटू 2, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अगर आपका ध्यान नहीं है इस पे, अल्फा पार्टिकल का मास मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास। अल्फा पार्टिकल का चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन का चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज होता नहीं है, राइट? सो इफ यू डू नॉट पे अटेंशन हियर, you may end up getting wrong answer. Next question. A proton, a deuteron, and an alpha particle with same kinetic energy. Now onwards, I will be writing this. क्या क्या constant है? Enter perpendicularly in uniform magnetic field. Ratio आपको पूछा है of their radii of circular path. तो E और B constant है. E electric field नहीं है, E energy है. B magnetic field है. Ratio of radii of circular path. R was under root of 2me upon qb, राइट? सब तीनों पार्टिकल्स का, प्रोटॉन का, ड्यूटेरॉन का, अल्फा पार्टिकल का E कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हम एंटर कर रहे हैं वो भी सेम है। तो इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बाय q, राइट? क्लियर? तो R प्रोटॉन इज टू R deuteron is to R alpha will be m proton upon q proton is to m deuteron upon q deuteron is to under root of m alpha upon q alpha. Mass of proton जो भी है उसको वैसे रखते हैं. Charge on proton is just E. Okay, so charge on proton is simply E. I'm just going to move it over here. That's it. Yeah. Okay, so this is extremely simple question. Why we'll realize in a while. ये E होता है. Deuteron ड्यूटेरॉन मतलब क्या, ये पता होना चाहिए पहले. 1 proton and 1 neutron. Okay, good. तो अंडर रूट ऑफ 2mp, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है. ड्यूटेरॉन इज अ न्यूक्लियस which has 1 proton and 1 neutron. 1 proton, 1 neutron. Deuterium is with इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड. तो इस पे भी चार्ज E होगा, क्योंकि एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है. न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है. अल्फा पार्टिकल मैंने अभी भी बताया 4 times of mass of proton, because alpha particle has 2 protons and 2 neutrons. Upon charge will be 2e. ये कैंसल 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 कैंसल. अंडर रूट ऑफ 1 is 1 is to root 2 is to 2 by 2 1, मतलब ये आएगा 1 is to root 2 is to 1, ऑप्शन नंबर सी. ओके, जिनको नहीं समझा मैं वापस समझा देता हूँ. सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. एनर्जी कांस्टेंट बोला है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. फिर प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा, इसके सिर्फ आपको मासेस एंड चार्जेस पता होने चाहिए. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The magnitude of the magnetic field at the center of tightly wound 150 turn coil of radius 12 centimeter carrying a current of 2 ampere is. आपको सेंटर पे, किसके कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मतलब it is the case of solenoid basically. So you know formula for solenoid, it was mu 0 n I, right? Good. आपको क्या बोला है यहाँ पे, magnitude of magnetic field at the center of tightly wound 150 turn coil of radius 12 centimeter carrying current of 2. तो आपको टोटल टर्न्स कितने दिए हुए हैं 150. तो मैं n अपॉन 2 पाई r लिखूंगा, क्योंकि स्मॉल n वाज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ से वो. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ. वी मे हैव अ कॉइल
I don't know with how many turns. 1 मीटर में कितने टर्न्स, दैट इज n, राइट? सो that is turns per unit length, so 2 pi r into I. म्यू जीरो होता है 4 pi into 10 power minus 7, n 150 दिया है, 2 pi r into करंट कितना दिया है आपको 2, और r की वैल्यू भी 12 सेंटीमीटर है, 12 into 10 power minus 2 मीटर है, और दिस इज 2, तो 1 जा 2 जा, so just simplifying things, 2 into 150, 300 into 2, 600, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 600 इंटू 10 पावर माइनस 7, और ये 10 पावर माइनस 2 ऊपर आएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ये इंटू 2 है, ये स्क्वायर मत कर देना, सॉरी फॉर माई पैथेटिक राइटिंग, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके, अपॉन 12 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऊपर गया था ऑलरेडी तो प्लस 2 है, दिस इज सिंपल, 1 जा 50 जा, ओके, गुड, तो ये आएगा आपका 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 प्लस 3, 10, ये 0, 3 माइनस कितना माइनस 4, ऐसा तो कुछ आंसर है नहीं, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, करंट आपने किस में लिया, एम्पियर, आर आपने किस में लिया, मीटर, वेरी गुड, म्यू जीरो किस में लिया, ऐसा यूनिट, वो आंसर गॉस में है, तो ये दिस आंसर दैट यू आर गेटिंग इज इन टेस्ला, so this is in Tesla. So now you have to convert from Tesla to Gauss, but still I don't expect that you will get the right answer. Why? All right, so let me tell you why you don't have to use this formula, क्योंकि ये एक normal सी mistake होती है. Why? The thing is, solenoid के सेंटर पे और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे डिफरेंस है, कहीं भी सोलेनॉइड मेंशन किया है कि यहाँ पे नहीं किया, तो यू शुड नॉट बी यूजिंग फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट एट द फर्स्ट प्लेस. हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, यू रिमेंबर, टाइटली वाउंड, मतलब आपके पास एक ऐसा देन दिस देन दिस, तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर magnetic field at the center of a circular coil, mu 0 I upon 2 R, ये था फॉर्मूला ऑफ एट द सेंटर ऑफ कॉइल, क्लियर, राइट? कहीं बोला है कि सोलेनॉइड है, नहीं, तो हम क्यों यूज करें फिर, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो गलती कहां होती है, व्हेन यू स्टार्ट ट्रीटिंग एवरीथिंग एज सोलेनॉइड, दिस इज नॉट अ सोलेनॉइड, इज इट क्लियर? मेंशन नहीं किया है तो नहीं यूज कर सकते, उन्होंने बोला होता कि सोलेनॉइड है तो यूज करो, उन्होंने नहीं बोला है, तो नाउ यू विल सी दिस इज 150, mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7, current is 2 upon 2 into 12 into 10 power minus 2 मीटर. यहां तक क्लियर? आंसर आएगा ये और ये कैंसिल, गुड, तो आपको मिल गया यहाँ पे 150 into 4, 600, 600 pi इंटू 10 पावर माइनस 7, और ऊपर का नीचे का माइनस 2 ऊपर के प्लस 2 होगा, तो माइनस 5 अपॉन 12, 1 जा एंड 5 जा, ओके, 5 पाई 15 पॉइंट समथिंग, 15.7 ही आने वाला है आंसर वैसे, 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, ओके, राइट? अभी टेस्ला टू गॉस कन्वर्जन पता होना चाहिए, so if you know what is Tesla to Gauss, you will be able to solve this. By the way, this is 50, okay, 12 1 जा 12 50 जा, तो ये 10 पावर माइनस 4 हो गया, क्लियर, क्लियर? यहाँ पे डू यू नो दैट 1 टेस्ला
is 10 to the power 4 Gauss. तो 1 Gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. तो ये 10 to the power minus 4 Tesla है यहाँ पे, it will become Gauss. तो 15.7 Gauss. Right? Is it clear? पक्का? Okay, just a minute. This is right. There's nothing wrong. What I want you to tell is कि आप लोग भूल जाते हो ये क्या ये. You always forget this. Tesla to Gauss conversion. कैसे याद रखते हैं? Tesla is SI unit. Gauss is CGS. हमेशा 1 meter is 10 square centimeter. है ना? Right? और भी कुछ याद होगा अगर आपको. 1 Newton is 10 power something times 7. Oh my goodness. Anyways, something plus number चेक करो आप. 7 है. तो फिर मैं ये पूछूंगा how much is 1 joule in erg. हाँ, तो that's why you need to know. So always and always and always you need to see SI unit जो है वो CGS से बड़ा यूनिट है ना. 1 मीटर इज 10 raised to plus something, है ना. तो 1 टेस्ला will be 10 to the power 4 Gauss. ओके, राइट. तो ये आप अभी नहीं भूलोगे. दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. यू विल नॉट फॉरगेट दिस. तो यू विल गेट करेक्ट आंसर. और यहाँ पे हर चीज को सोलेनॉइड ट्रीट नहीं करना है अनलेस इट इज स्पेसिफाइड. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. A tightly wound 90-turn coil of radius 15 has a magnetic field 4 × 10 power minus 4 Tesla at its center. The current flowing through this is, again, this will be N mu 0 I by 2R. Okay? Pi use नहीं करना. तो ये आएगा I equal to 2BR upon N by mu 0. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू बी. बी कितना बोला है आपको? 4 इंटू 10 पावर माइनस 4. आर कितना है? 15. 15 इंटू 10 पावर माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स. एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन. 90 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. वाई अच्छा बोला मैंने? 15 1 जा 15 4 जा 90 90 90 गया, है ना. 15 4 90 होता है ना. Yes. So this is what you need to remember correctly. क्योंकि I have seen these things 1 and 6, right? तो ये 2 ये 3, या फिर better to say हाँ 4 और 4 गया, 1 और 3. मैंने क्यों बोला ये? क्यों? क्योंकि आंसर 1.06 आएगा. कैसे? देखो, अब नीचे क्या है? 3 इंटू पाई, मतलब रफली 10. रफली 10. ऊपर क्या बचा? 10 पावर माइनस 6. नीचे क्या आया? 10 इंटू 10 पावर माइनस 7, मतलब 10 पावर माइनस 6. तो रफली कितना? 1 एम्पियर. ऑप्शन नंबर ए. जिसको नहीं समझा है कैलकुलेशन में रिपीट कर रहा हूं. Those who have not understood, I am repeating this for you. Okay. What I will do is, first of all, देखो ये 2-3 तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो. 1 जा 6 जा, राइट. 15 1 जा 15 6 जा. ये 4 गया. 1 जा 3 जा. 3 into 3.14 is 9.42, है ना. तो मैं रफली 9.42 को 10 ले सकता हूँ. ले सकता है. ऊपर क्या है? 10 पावर माइनस 6. नीचे क्या है? 10 इंटू 10 पावर माइनस 7, मतलब 10 पावर माइनस 6. हाँ, तो रफली 1 एम्पियर. एक ही ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 3 centimeter is having current of 12.5, magnitude of magnetic field at a distance of 4 centimeter on its axis. You need to remember what was this formula.
This was mu 0 I r square upon 2 times of x square plus r square raised to 3 by 2. Magnitude of magnetic field at the axis of a current carrying circular loop at the axis, right, where x is the distance from the center. ये x distance है, right, ये 4 सेंटीमीटर बोला है. Then you need to find out magnetic field. Mu 0 की वैल्यू 4 pi 10 पर minus 7, current 12.5, r radius of loop is 3 centimeter, r is 3, x is 4. Okay, तो 3 सेंटीमीटर 3 into 10 power minus 2 का square upon 2, this x is 4 centimeter, 4 into 10 power minus 2 का square plus 3 into 10 power minus 2 का square. Those who are good in calculations, you will know कि नीचे 25 आ रहा है ब्रैकेट में, 25 का स्क्वायर रूट है, मतलब 5 का क्यूब है, 125. मैं ओरली बता रहा हूँ. Look here, look, because this is what you are supposed to do, not me. So सबसे पहले what I want and what I don't want here. पहले तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, उसका क्यूब 125, मतलब नीचे 2 into 125 into ये 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 कॉमन था, तो 10 पावर माइनस 4 का भी रेज टू 3 by 2 करोगे, मतलब 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट 10 पावर माइनस 2, उसका क्यूब 10 पावर माइनस 6, तो यहाँ पे 10 पावर माइनस 6 आएगा. ये समझा गया कैलकुलेशन? यस, ऑल ऑफ यू? गुड. Wait, I will do it again for you, but just for the time being, focus here. 4 pi into 3 का स्क्वायर 9, 10 पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस 7, मतलब माइनस 11, और ये 12.5. 1 जा 10 जा, 1 जा 2 जा. अभी क्या है कि नीचे 10 पावर माइनस 5 है टोटल, ऊपर के प्लस होगा, तो 2 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर माइनस 11 प्लस 6, माइनस 11 प्लस 5 कितना? माइनस 6. ओके, 2 इंटू 9 18 इंटू पाई 18 इंटू 3 18 प्लस 18 प्लस 18 54, 54 के आसपास आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि मैंने पाई की जो 3 ली है, 3.14 ज्यादा आएगा, मतलब कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस फॉर श्योर. तो 5.65 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, राइट, और यही आना चाहिए और यही आया है. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कैलकुलेशंस, so you have to pay attention on calculation because this is oral question. Once you write down this all just by oral calculations, न्यूमरेटर तो फिलहाल जैसा है वैसा रखेंगे, so I am not worried about numerator. इक्वल टू अपॉन नीचे 2 इंटू, जैसे मैंने बताया 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 का क्यूब 125, 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, यहाँ पे भी 10 पावर माइनस 4 कॉमन निकाल लिया था हमने, 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट 10 पावर माइनस 2, उसका क्यूब 10 पावर माइनस 6, तो यहाँ पे नीचे 10 पावर माइनस 6 आएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4 होगा. So you will have 9 into 10 power minus 4 here. 1 जा नीचे 10 जा, 1 जा and 2 जा,
तो 2 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर -7 -4 -11, नीचे से -5 ऊपर आएगा, +5, -11 +5 इज -6, 10 पावर -6, 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54 के ऊपर आंसर जाएगा, 54 के ऊपर। ऑप्शन में 5.65 और 5.2 में टफ कंपटीशन है, लेकिन हमको पता है कि 54 के ऊपर जाएगा, मतलब ये 56.5 इंटू 10 पावर -6 टेस्ला, मतलब 5.65 इंटू 10 पावर -5 टेस्ला आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, circular coil of wire consisting of 100 turns each of a radius 9 centimeter carries a current of 0.4. The magnitude of magnetic field at the center of the coil is. Now we are doing the same questions again and again because यहाँ पे वही है, B equal to, तो B equal to n times of mu 0 I by 2 R. सोलनॉइड नहीं बोला है तो सोलनॉइड नहीं लेंगे, तो कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ, so we are not going into calculations now. The electric current in a circular coil of 2 turns produce a induction of 0.2 टेस्ला at its center. तो हमारे पास 2 टर्न्स का जो कॉइल था, इट इज प्रोड्यूसिंग a magnetic field, let us say B1 0.2 टेस्ला. Number of turns is 2 here, N1 is 2. The coil of unwound and then rewound, the coil is unwound and then rewound into circular coil of 4 turns. 2, 3, 4. So definitely when you have 4 turns, the radius is going to decrease. Okay, so something like this. So if the same current flows, मतलब current is constant, the magnetic induction will be equal to how much? Right. So if you want to solve this question, the thing is center पे बोल रहे हैं, सोलेनॉइड ये वर्ड यूज नहीं किया है, राइट, और करते हुए तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता. व्हाट इज फॉर्मूला अगेन? n mu 0 I by 2 R, right? Current is constant according to what they're saying, current is constant. Mu 0 is constant, 2 is constant, B is proportional to n by R. तो जब मैं B2 by B1 या B1 by B2 जो भी करोगे आप, तो B2 by B1 हम जब करेंगे तो N2 by N1 और R1 by R2 ऐसा आएगा. अब प्रॉब्लम है R1 और R2 का रेशियो, which is actually not a problem, but you have to find a way out of calculating R1 and R2. First of all, length in the first case and second case of the wire will remain same. पहले 2 टर्न दिए, बाद में 4 टर्न, इतना ही डिफरेंस है. You have given 2 turns earlier and then you are giving 4 turns. तो जब मैं 2 turns दूंगा, तो you know number of turns, कैसे फाइंड करते नंबर ऑफ टर्न्स? अरे एक मिनट रुको, लेट मी स्पीक, डू नॉट गो रैंडमली. प्रॉब्लम यहाँ होती है जब फिजिक्स में आप सोचे बिना आप बोलते हो, दैट इज इशू. मेरे पास एक वायर है लेंथ L, मैंने उसको कॉइल बना दिया सिंगल टर्न, L इक्वल टू 2 पाई R, करेक्ट. R1 बोल देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए. अब सेम को मैंने 2 टर्न बना दिए, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई R2 multiplied by n, total number of turns, if you don't want to get confused. Clear? length of the wire is constant. एक टर्न दिया था 2 पाई R, 2 टर्न दिया था 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R2, है ना. तो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई R2, 3 टर्न दूंगा तो
2 pi r plus 2 pi r plus 2 pi r, 3 times of 2 pi. Is it clear? So if you understand this, I will write n1 2 pi r1 equal to n2 2 pi r2, 2 pi 2 pi cancel, तो r1 is to r2. तो आप चाहो इसको कैपिटल आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू राइट डाउन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, डजंट मैटर. तो you will have r1 upon r2 equal to n2 by n1, and you put this thing here. So b2 by b1 is n2 by n1 into n2 by n1 again, क्योंकि r1 by r2 is n2 by, अदरवाइज ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा. दे हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड, मैंने वो अप्रोच भी दिया है इसमें, r1 और r2 कैलकुलेट किया है. डू वी हैव दैट मच ऑफ टाइम? नो. तो ये आ जाएगा आपका n2 by n1 कितना था? 4 by 2 है ना. n2 is 4, n1 is 2, 4 by 2 square. Okay, good. तो this is 4 again, 4 again. तो b2 is 4 times of b1. What was b1? 0.2 into 4 is 0.8 Tesla, correct? Right? Clear? Do you remember पहला ही क्वेश्चन इस चैप्टर का जब हमने सॉल्व किया था, b2 is n square time b1, where n मैंने बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स इनिशियल 1 होना चाहिए. अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं. अब हम बोल सकते हैं कि दिस स्मॉल n happens to be n2 by n1, राइट? तो अगर आपको ये पता होता तो फिर ओरल था b2 equal to n2 by n1 का स्क्वायर, 4 by 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 times of b1, 4 times of b1. So that is hint. So I will write down that hint for you because it is essential. तो यहाँ पे ट्रिक, b2 is n2 by n1 का स्क्वायर times of b1. Next question. A long straight wire carries a current of 14 ampere. Then the magnetic field at a point 15 centimeter away from it. मैंने पहले बताया था long straight wire के केस में at some point P, if the distance is A, then I told you B is equal to mu 0 I upon 2 pi A. इसको 4 pi into 10 power minus 7 लिखेंगे. करंट की वैल्यू 40 एम्पियर है, अपॉन 2 पाई है, ए 15 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 जा एंड 2 जा, तो ये आपका 3 and 8. ओके, 8 2 जा 16, 16 by 3 is nothing but 0.33, 10 power minus 7 plus 2 is 10 power minus 5, 16 into 3 is roughly 16 into 3 is 48. तो 4.8 से थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि 33 है, तो 5.34 into 10 power minus 5 टेस्ला ऐसा आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 75 ampere in north to south direction. ये हमने सॉल्व किया है. This is we have solved already. हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके पास एक वायर है विच इज कैरिंग करंट नॉर्थ टू साउथ. मैंने बताया था नॉर्थ टू साउथ मतलब ऐसा करंट आ रहा है और हमको 3 मीटर ईस्ट में, 3 मीटर ईस्ट मतलब समवेयर हियर वी आर सपोज टू फाइंड आउट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ दिस राइट हैंड थंब रूल. तो वी हैव डन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी. Two long parallel wires A and B carrying current 4 and 7 amp in the same direction are separated by 5 centimeter distance. तो आपको याद है वैसे, by the way, like currents they attract here. Here like currents attract. When the currents are in the same direction they attract. The wires start attracting each other. And ये जो दो
वायर्स का डिस्टेंस था, दैट डिस्टेंस a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन 8 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर। तो आपको पहले तो याद होना चाहिए व्हाट इज टोटल फोर्स का फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर फॉर्मूला वाज व्हाट? मैंने बताया था आपको, इसमें I1 भी आता है, इसमें I2 भी आता है, इसमें 2I1 I2 L अपॉन समथिंग ऐसा आता है। तो μ0/4 पाई 2I1 I2 L अपॉन A ऐसा आता है। दिस इज टोटल फोर्स, है ना। मुझे अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पहले मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, फिर मैं 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना। तो ये पर सेंटीमीटर मिलेगा या पर मीटर मिलेगा, डिपेंड्स ऑन अस। ओके, तो दिस इज 10 पावर -7, 2 into I1, what is I1 4, what is I2 7। अगर डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखते हो तो ये फोर्स आपको मिलेगा पर सेंटीमीटर। तो मैं इसको 5 ही रखता हूं फॉर द टाइम बीइंग, वी आर नॉट डूइंग 10 पर -2 हियर। ओके, तो ये आपको मिलेगा फोर्स पर सेंटीमीटर, 2 into 4 8 into 7 56, है ना। 2 into 4 is 8, 8 into 7 is 56। तो 56/5 into 10 पावर -7 न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब हमको टोटल लेंथ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। हमको बोला है कि 8 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो फिर मैं 56/5 into 10 पावर -7 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो न्यूटन पर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज न्यूटन पर सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, तो हमको मिल जाएगा टोटल। तो दिस इज अगेन सिंपल थिंग, व्हाई, बिकॉज 56, या तो फिर ये रफली रफली बात करोगे, रफली रफली 1.5 के थोड़ा ऊपर जाता है। 5 1 इज 5, 5 2 इज 10, तो ये 1.5 के ऊपर जाता है, 1.6 मान लो। तो 56 into 1.6, रफली 9 समथिंग समथिंग। ओके, तो रफली रफली 9 समथिंग समथिंग आपको करना पड़ेगा। तो दिस आंसर शुड टर्न आउट टू बी सी, क्योंकि ये 90 पॉइंट समथिंग आएगा 10 पावर -7, तो 9 into 10 पावर -6 न्यूटन आएगा आंसर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हमको पूछा है कि 8 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना फोर्स। तो मैंने पहले 1 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स वो निकाल लिया। सो दिस इज फोर्स पर सेंटीमीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो हमको मिला 56/5 into 10 पावर -7। ओके, देन मैंने 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फोर्स पर यूनिट सेंटीमीटर, मतलब फोर्स पर सेंटीमीटर इनटू लेंथ इन सेंटीमीटर, that will give us total force on 8 centimeter section of wire. Next question, a conductor of length 2 meter carries a current of 2 ampere is held parallel to an infinitely long conductor carrying a current of 12 amp at a distance of 100 mm. The force on the small conductor is, so it is something like this। आपके पास एक इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, उसके पास में एक स्मॉलर कंडक्टर है। ओके, and the distance between these two conductors is 100 mm। तो A equal to 100 mm, 100 into 10 power -3, मतलब 10 power -1 meter। Okay, distance is this। Now this big wire has a current of 12 amp, this small has a current of 2 amp, this length is 2 meter। Okay, so
फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल कंडक्टर मैंने आपको बताया था. लेट मी गिव इट सम नेम. नंबर 1, नंबर 2. तो फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2. वायर 1 is in the magnetic field of wire 2. बिल, BIL. किसका बी? सेकेंड कंडक्टर का बी. किसका करंट? पहले का. किसका लेंथ? पहले का. हाउ डू यू फाइंड आउट बी? इट वॉज म्यू जीरो आई 2 क्योंकि सेकेंड का है अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस. इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, सेकेंड वायर का फर्स्ट वायर की पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए नीचे मैंने डिस्टेंस लिया है ए. इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? श्योर? श्योर. I1 into L1. तो we know mu 0 is 4 pi into 10 power minus 7. I2 is 12 upon 2 pi into A is 10 power minus 1 into I1. I1 is 2 and length of 1 is also 2. So cancel, cancel, right? So pi cancel. 4 into 12 that is 48 into 2 is 96. खत्म है ना. 12 4 का 48 into 2 is 96. 96 into 10 power minus 6 मतलब 9.6 into 10 power minus 5 न्यूटन. इसलिए हमेशा याद रखना जब आप BIL लिखते हो तो B is field. A field due to other wire या external magnetic field we don't care, but I and L are the parameters of the wire on which you are calculating force. हम छोटे वायर पे निकाल रहे थे तो I और L छोटे वायर पे. Okay, good. Next question. Two parallel wires 2 meter apart carry currents of 2 ampere 5 ampere in same direction. The force per unit length. अभी ऐसे केस में see again addressing your question. फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग बिटवीन दीज टू वायर. अभी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला ना कि एक वायर पे कितना फोर्स, तो यहाँ पे सीधा सीधा F by L कर देना है, बस खत्म. दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू. यू रिमेंबर दिस म्यू 0 by 4 pi 2 I1 I2 by distance between these two. This is 10 power minus 7. 2 into I is 2 and I2 is 5 upon distance कितना था दोनों में? 2 मीटर apart. कैंसिल कैंसिल. 10 into 10 power minus 7 तो 10 power minus 6. ऑप्शन नंबर सी. खत्म. Good. A galvanometer of resistance 10 ohm gives full scale deflection when 1 milliampere current passes through it. The resistance required to convert it into voltmeter मतलब series resistance पूछा है of into a voltmeter of reading up to 2.5 मतलब total voltage range of voltmeter is 2.5 volt. We're supposed to find out RS. So, do you remember हमने एक फॉर्मूला बनाया था V इक्वल टू, वैसे नहीं याद होता तो बता देता हूँ. हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है. हमने एक सीरीज में एक RS लगाया है और अगर हमको इफ यू रिमेंबर यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो होता है VG, यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो होता है VS. Total voltage it can measure that V is VG plus VS. Since they are in series, current flowing through this is same, which is I or IG. जो नाम देना हो दे सकते हो. Nothing to do with names. V is equal to IG into G plus IG into RS. ओके, सीरीज में इसलिए दोनों में करंट सेम होगा तो V इक्वल टू IG कॉमन, या फिर हमको क्या फाइंड करना है? हमको RS फाइंड करना है. ठीक है, वैसे फॉर्मूला बना चुके हैं. सो V by IG
G plus RS. So RS is V upon IG minus G. Do we know V? Yes, 2.5. Do we know IG? Yes, 1 milliamp, मतलब 10 पर minus 3 amp. Do we know गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम. तो ये 10 पर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा. 2.5 इंटू 10 पावर 3, 2500. 2.5 into 10 power 3 is 2500 minus 10 मतलब कितना 2490 ओहम है गया. ऑप्शन सी. डन. Okay, so we'll stop here for today and we'll start with new chapter in the next session.